Good morning, everyone, and welcome to this live online chemistry class conducted by Directorate of Education, Delhi. Today, we will continue with the chapter Alcohols, Phenols, and Ethers that we started in the last class on 4th of Feb. And this is lecture number 2 of the chapter. Myself, Dr. Seema Bhardwaj from RPVV Sector 10 Dwarka, and I will be conducting today's session of this live class. With me on panel for this online class today are Mr. Harpreet Singh, our coordinator, Mr. Mukesh Kaushik, Mr. Pradeep Gusai, Mr. Rajiv Kumar Jha, Dr. Deepak Kumar Ruhela, Ms. Akshma, Ms. Reshma Chandwani, and Mr. Mohit Garg. Ms. Akshma is co-panelist for today's class. In this pandemic period, in order to defeat the coronavirus completely, we need to continue behaving in the COVID appropriate manner. So continue wearing masks, maintain physical distancing, and wash your hands regularly and properly. The various resources in this presentation have been used purely for educational and learning purposes. We acknowledge and thank all the holders for the rights of the content in this presentation. If any discrepancy or inadvertent error is noted in the presentation, it would be rectified accordingly. Let us now move to the chapter with a quick recap of lecture 1 that was streamed on 4th of Feb. So we started the chapters alcohols, phenols and ethers in that class. और पहला जो हमने किया वो क्या था जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. फिर हमने क्लासिफिकेशन किया अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन विच इज बॉन्डिंग टू OH ग्रुप. Then हमने किया IUPAC system of nomenclature of alcohols and phenols. Then general methods of preparation of alcohols, physical properties of alcohols with special reference to solubility and their boiling points. Then we started with chemical properties. Last class में हमने chemical properties start की थी और हमने ये देखा कि alcohols इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं. उसमें हमने दो रिएक्शंस की बात की थी. एक वो रिएक्शंस हैं जिसमें C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा. दूसरी वो रिएक्शंस हैं जिसमें O एंड H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा. हमने स्टार्ट किया था उन रिएक्शंस के साथ जिसमें O एंड H के बीच का बॉन्ड क्लीव हो रहा है. सो ये वाली रिएक्शंस हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में और इसमें हमने डिस्कस किया था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स और कंपेयर किया था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स को विद रेफरेंस टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. एंड वी found that the order of acidic strength of alcohols is primary, secondary, and tertiary, primary being most acidic and tertiary being least. So now we are continuing with the same category of reactions, means those reactions in which cleavage of OH bond is taking place. So the reaction in that category, next reaction is esterification. जब अल्कोहल्स ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमने 10th क्लास में भी किया हुआ है कि जब अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड, सो अल्कोहल्स का H एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से OH एंड H2O जाएगा एंड एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. दिस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैन आल्सो बी कैरिड आउट विद एसिड डेरिवेटिव. यहाँ हमने सीधा लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड. ये रिएक्शन जैसे हम कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है. एसिड एनहाइड्राइड, इसके साथ भी अल्कोहल को हम रिएक्ट कराएंगे, वी विल गेट एस्टर. और एसिड क्लोराइड्स RCOCl, इसके साथ अल्कोहल रिएक्ट कराएंगे, यू विल गेट ester. So this reaction is known as esterification because it is leading to the formation of ester. अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के, हम देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वी आर यूजिंग. व्हाट इज इट्स रोल इन दिस रिएक्शन? इसका रोल जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये एक्ट करता है एज डिहाइड्रेटिंग एज वेल एज प्रोटोनेटिंग एजेंट. दिस इज डिहाइड्रेटिंग एज वेल एज प्रोटोनेटिंग एजेंट. ये इसका रोल है इस रिएक्शन में. जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे इस रिएक्शन की इन नेक्स्ट चैप्टर विद कार्बोक्सिलिक एसिड, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन, सब आपको इसका रोल ऑल क्लियरली कि हाउ इट वर्क्स एज अ प्रोटोनेटिंग एजेंट, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा. इसके बाद एक चीज और हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है दिस इज हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन. सो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई एस्टर और वाटर फॉर्म्ड शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड. सो जो एस्टर बन रहा है या वाटर बन रहा है, अगर आप उसे लगातार वहां से हटाते रहेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रमोट होगी. तो दिस इज डन टू प्रमोट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट प्रोडक्ट को आप उसकी साइड से हटाते रहो तो रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी रुक जाती है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रमोट होगी. इसीलिए ये हमें करना पड़ता है. तो दिस इज अनदर क्वेश्चन.
इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम ये एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड क्लोराइड या एसिड डेरिवेटिव्स की जब हम बात करते हैं, चाहे वो एनहाइड्राइड्स की बात कर रहे हो या एसिड क्लोराइड की बात कर रहे हो, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी जगह देखना है कि क्या प्रेजेंट है। जैसे एसिड क्लोराइड में Cl प्रेजेंट है, सो अल्कोहल से जाएगा H, Cl जाएगा यहाँ से, तो रिजल्ट क्या, जैसे यहाँ पे OH और H गया था, तो यहाँ पे OH की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जो एसिड क्लोराइड है इसमें Cl प्रेजेंट है, तो HCl विल बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये एक एसिड बाय प्रोडक्ट है और यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका रोल आता है पेरिडीन, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका रोल है टू न्यूट्रलाइज द एसिड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। सो ये भी एग्जाम में आया कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेरिडीन, यूजिंग पेरिडीन ड्यूरिंग एसाइलेशन रिएक्शन या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो दैट विद एसिड क्लोराइड जब आप एस्टरिफिकेशन करा रहे हो तो उसका रोल होता है HCl को न्यूट्रलाइज करना। इसमें हम यही देख रहे हैं कि हमें ये देखना है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सा था, OH था, एसिड क्लोराइड में Cl है OH की जगह, और अगर एसिड एनहाइड्राइड देख रहे हैं तो वहां पे OH की जगह क्या प्रेजेंट है, OH की जगह प्रेजेंट है ये पूरा पार्ट। सो अल्कोहल से जाएगा H और इस डेरिवेटिव से जाएगा RCOOH, तो इसका बाय प्रोडक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एक चीज कॉमन है कि सब में एस्टर बन रहा है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एस्टरिफिकेशन इज कैरिड आउट विद कार्बोक्सिलिक एसिड और विद सम डेरिवेटिव, उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी डेरिवेटिव के साथ आपने एस्टरिफिकेशन किया है, बाय प्रोडक्ट्स विल बी डिफरेंट। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बाय प्रोडक्ट आ रहा है वाटर, अगर आपने एसिड एनहाइड्राइड यूज किया तो आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आपने एसिड क्लोराइड लिया तो बाय प्रोडक्ट हमारे पास है HCl। तो दिस इज हाउ द बाय प्रोडक्ट डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट you have started with carboxylic acid or some carboxylic acid derivative, but in all case you will get ester। अब अगर हम नेमिंग की बात करें तो हाउ डू यू नेम एन एस्टर। एस्टर के केस में हम दो पार्ट देख रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है जो ऑक्सीजन के बाद की बात कर रहे हैं, ये हम कहते हैं दिस इज कन्वेंशनली अल्कोहल पार्ट, इसको बाद में लिखा जाता है कि ये वाला पार्ट अल्कोहल से आया, ये वाले जो कार्बन है ये अल्कोहल पार्ट से आए हैं, और ये जो पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये वाले कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका नाम देते हैं IUPAC सिस्टम के हिसाब से, एस्टर का नाम कैसे दिया जाता है, एस्टर का नाम दिया जाता है एल्काइल एल्केनोएट। अब इसमें से एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल कौन है, एल्काइल नाम आएगा अल्कोहल पार्ट से, और एल्केनोएट जो नाम है दैट विल बी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं हम, CH3 COO CH3, सपोज हमने ये लिया, तो अभी बताया कि जो बाद वाले कार्बन है ऑक्सीजन के बाद वो अल्कोहल पार्ट के कार्बन है, तो इसको नाम दिया जाएगा एल्काइल की तरह। तो एक कार्बन वाला एल्काइल यानी मिथाइल, वन कार्बन एल्काइल ग्रुप इज मिथाइल। अब ये दो कार्बन वाला एल्केन इथेन, और हमें क्या लगाना है OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है और इसका नाम लिखा जाएगा एज एल्केनोएट, दैट मींस यहाँ पे दो कार्बन है तो इथेनोएट। तो दैट इज हाउ वी नेम एस्टर्स। ये चीज हमें आगे यूज करनी है, so this information should be kept in mind। नेक्स्ट हम दूसरी कैटेगरी की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जहां पे हम पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन जहां पे C और O के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा। हम अभी बात कर रहे थे इस वाले बॉन्ड की, जो अभी हमने दो रिएक्शंस प्रीवियस क्लास में, और आज की क्लास में जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी, वो हम बोल रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा था। अब हम वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जिसमें C और O के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा। इन रिएक्शंस में जब C और O के बीच का बॉन्ड क्लीव होता है तो जो रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल्स की, दैट फॉलोज द ऑर्डर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, यानी इन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल्स होते हैं टर्शरी। रीजन कि यहाँ पे अगर हम देखें कि इस कार्बन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सपोज टर्शरी अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, 3 अल्काइल्स ग्रुप जुड़े हुए हैं। सो रिजल्ट क्या होगा कि इस के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से ये जो CO बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी टर्शरी अल्कोहल के केस में। सो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे CO बॉन्ड उतना ही ज्यादा पोलर होगा और OH बॉन्ड उतना ही लेस पोलर होगा। तो CO बॉन्ड की पोलैरिटी क्योंकि सबसे ज्यादा टर्शरी है, तो अगर CO बॉन्ड ब्रेक होना है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो उन रिएक्शंस में होगी वो होगी टर्शरी अल्कोहल्स की। अब इस रिएक्शन में, इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं रिएक्शन का, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स।
हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ जब रिएक्शन करता है अल्कोहल, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, हैलोजन एसिड लाइक HBr, HCl, HI, इनके साथ जब रिएक्शन होती है तो ये CO के बीच का बॉन्ड क्लीव होना है, यानी अल्कोहल से जाएगा H और हैलोजन एसिड से H, OH, ये अल्कोहल से OH और हैलोजन एसिड से H, एंड वी विल गेट वाटर एंड अल्काइल हैलाइड। तो ये रिएक्शन हमें देती है अल्काइल हैलाइड। अब डिपेंडिंग अपॉन आपने HCl लिया था तो क्लोरो एल्केन, HBr लिया था ब्रोमो एल्केन, HI लिया था देन आयोडो एल्केन यू विल गेट। इस रिएक्शन में अभी हमने डिस्कस किया कि जो HCl के साथ, तो इन दैट केस इट रिक्वायर्स नो कैटलिस्ट, इसको कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, रिएक्टिविटी हाई है एंड यू विल गेट क्लोरो एल्केन, ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, क्लोरो एल्केन एंड दिस वाटर। सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू टर्शरी कम है, तो उसके केस में हमें एक कैटलिस्ट चाहिए, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हम इन रिएक्शन में कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। अगेन यू विल गेट क्लोरो एल्केन एंड वाटर, यहाँ पे जो आर होगा दैट विल बी सेकेंडरी अल्काइल। और प्राइमरी अल्कोहल अगर हम लेंगे तो उसको अगर हम HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, उसकी रिएक्टिविटी और कम है, तो उसको जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट तो हम यूज कर ही रहे हैं, उसके साथ एक और चीज चाहिए कि उसको हीट भी चाहिए, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी और कम है। तो टर्शरी अल्कोहल रिक्वायर्स नो कैटलिस्ट, सेकेंडरी अल्कोहल रिक्वायर्स कैटलिस्ट, प्राइमरी अल्कोहल रिक्वायर्स कैटलिस्ट एज वेल एज हीट इन दिस रिएक्शन। अब ये जो एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं यहाँ पे, दीज आर वाटर इनसॉल्युबल। जैसे अगर हमने रिएक्शन करवाई अल्कोहल की HCl के साथ, तो ये जो क्लोरो एल्केन बन रहा है ये वाटर इनसॉल्युबल होगा। तो कोई भी रिएक्शन मिक्सचर में, अगर एक रिएक्शन मिक्सचर था आपके पास, जैसे हमने लिया था ये एक क्लियर सॉल्यूशन था आपके पास, लेकिन जैसे ही क्लोरो एल्केन बना, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, रिजल्ट क्या होगा कि उसका बनना, अगर मीडियम में कुछ ऐसी चीज बन रही है जो डिसॉल्व नहीं हो रही, तो आपको एक धुंधलापन नजर आएगा, एक टर्बिडिटी, जैसे ही वो बनना शुरू होगा सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा और एक वो धुंधलापन आपको दिखाई देगा, तो उसे हम बोलते हैं क्लाउडीनेस अपीयर हो रही है, टर्बिडिटी अपीयर हो रही है। अब ये टर्बिडिटी किस रेट से अपीयर हो रही है, जो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा उसके लिए टर्बिडिटी सबसे जल्दी आएगी। जैसे टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, तो जैसे ही आप उसमें ल्यूकास रिएजेंट डालते हो, ल्यूकास रिएजेंट होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो जैसे ही हम अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट ऐड करते हैं, क्योंकि टर्शरी की रिएक्शन सबसे फास्ट है, तो अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है, टर्बिडिटी appears immediately, then वो अल्कोहल रहा होगा टर्शरी अल्कोहल। अगर आपने ल्यूकस रिएजेंट ऐड किया, टर्बिडिटी is taking some time to appear, it is taking like 5 10 15 minutes to appear, then that alcohol is secondary alcohol। और अगर आपने ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया बट रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी नहीं आई, तो और केवल हीट करोगे आप उसको, कैटलिस्ट ऑलरेडी देयर, सो अगर आप हीट करोगे तो टर्बिडिटी आ जाती है, देन इन दैट केस इट इज प्राइमरी अल्कोहल। So this is how we use this reaction to distinguish, this is called Lucas test, to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। Lucas reagent क्या हुआ, equimolar mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride। Zinc chloride is a catalyst in this reaction। जैसे ये रिएक्शन हमें दिख रही है, टर्शरी अल्कोहल का एक एग्जांपल लिया है, जब ये रिएक्ट कर रहा है, ये हुआ ल्यूकास रिएजेंट, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वी आर गेटिंग, ये अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई तो ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज टर्शरी अल्कोहल, तो ये टर्शरी के केस में होगा। सिमिलरली अगर ये जैसे दिख रहा है सेकेंडरी अल्कोहल है, जब ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा टर्बिड तो हुआ, बट उतनी इंस्टेंट टर्बिडिटी नहीं है जैसे टर्शरी के केस में है, तो इट हैज स्टार्टेड appearing turbid, तो ये सेकेंडरी है, इट विल टेक सम टाइम टू बिकम लाइक दिस। जैसा टर्शरी के केस में जितना क्लियर आपको टर्बिडिटी दिखाई दे रही है, उतना होने में इसको टाइम लगेगा, इट इज सेकेंडरी। लेकिन अगर हम प्राइमरी की बात करें, तो प्राइमरी के केस में जब हमने ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया, तो क्योंकि नो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे वो टर्बिड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो क्लियर दिख रहा है आपको, इट विल टेक टाइम, और इसको अगर आप हीट करोगे देन ओनली टर्बिडिटी विल अपीयर। तो ये हुआ प्राइमरी। तो दिस इज ल्यूकास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट रिएक्शन इन द सेम कि CO बॉन्ड क्लीव हो रहा है, उसी कैटेगरी की नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, और ये रिएक्शन भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी। इस रिएक्शन में भी हेलो एल्केन्स बनते हैं। अगर आपने PCl5 PCl3 फॉस्फोरस हैलाइड, जैसे PCl5 PCl3 PBr3 PI3,
PCl5 या PCl3 से रिएक्शन कराएंगे, क्लोरो एल्केन बनेंगे, PBr3 से करवाएंगे, ब्रोमो एल्केन बनेंगे, Pi3 से कराएंगे, आयोडो एल्केन बनेंगे। ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें फर्क क्या है, अगर हम PX3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, PX3 यानी ट्राई हैलाइड के साथ, वेदर इट बी ट्राइक्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो हमें क्या मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, सिमिलर वे में रिएक्शन हो रही है। बाय प्रोडक्ट इन ऑल द रिएक्शंस इज H3PO3। लेकिन जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मेन प्रोडक्ट वही रहेगा क्लोरोएल्केन, लेकिन बाय प्रोडक्ट PCl5 के साथ बाय प्रोडक्ट होगा POCl3 एंड HCl। अब एक चीज और जो नोटिसेबल यहाँ पे दिख रही है वो ये कि जब हम PCl3 लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा P+Cl2, लेकिन जब हम PBr3 लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है P+Br2, Pi3 लिख रहे हैं तो लिखा है P+I2। व्हाट डज दिस इंडिकेट, इससे क्या पता चलता है? तो ये जो PBr3 या Pi3 है, दीज आर नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड्स। ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स नहीं है, तो इनको बना के हम कहें कि हम स्टोर कर सकते हैं, वो नहीं करते हैं। जब हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये तभी रिएक्शंस के थ्रू बनाए जाते हैं, और इसको बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। तो ये इन सीटू प्रिपेयर्ड हैं दोनों। और ये जो आपको एरो के साथ लिखा हुआ दिख रहा है P+Br2 या P+I2, ये इनका इन सीटू प्रिपरेशन को इंडिकेट करता है। इन सीटू मतलब when required these are prepared in reaction mixture itself। तो जैसे हमें PBr3 चाहिए तो हम क्या लेंगे, रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन। तो रिएक्शन मिक्सचर में हम लेंगे रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन, देन एंड देयर व्हाट विल फॉर्म PBr3 and this will react further with alcohol। और similarly हमें Pi3 चाहिए, then we will take red phosphorus with iodine, Pi3 बनेगा, बोलेंगे इन सीटू बना है, इन सीटू प्रिपेयर होगा और उसके बाद वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा and we will get iodoalkane। So this is reaction of alcohols with phosphorus halides resulting in the formation of alkyl halides। Next important reaction, one more, is a dehydration of alcohols। जब हम अल्कोहल्स को हीट करते हैं विद प्रोटोनिक एसिड्स, प्रोटोनिक एसिड जो प्रोटॉन दे सकते हैं H पॉजिटिव, प्रोटोनिक एसिड्स लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 के साथ हम हीट करते हैं, वी विल गेट एल्कीन। हमें एल्कीन मिलेगी बिकॉज दे एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे, वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल। जैसे हमने यहाँ एक जनरल दिखाया कि एक अल्कोहल है, कार्बन जिसके पास OH है, दैट विल लूज OH, और उसके एडजेसेंट कार्बन से H का लॉस होगा, बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये H2O का लॉस होगा और दोनों के बीच में यहाँ एक डबल बॉन्ड आपको फॉर्मेशन दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा यानी एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। इथेनॉल के लिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म काफी आता रहता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इथेनॉल को जब हम हीट करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट अबाउट 443 केल्विन, दिस टेम्परेचर इज टू बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे एक दूसरी रिएक्शन होती है जो आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सो इथेनॉल को जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं एट अबाउट 443 केल्विन, इट गेट्स डिहाइड्रेटेड टू गिव इथीन, हमें इथीन मिलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा इथेनॉल का। इसकी मैकेनिज्म हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो है, अल्कोहल कितना इजीली अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा, उसका ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, यानी सबसे आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, और सबसे मुश्किल डिहाइड्रेशन होगा प्राइमरी अल्कोहल के लिए। ये क्यों होता है ये ऑर्डर, वो इसका आंसर लाई करता है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में, जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी का ऑर्डर क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से जो ऑर्डर है उससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हम सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे तो हमें माइल्डर कंडीशंस चाहिए। जैसे एक सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल है, हमें पता है H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3PO4। तो प्रीवियस में जब हमने अल्कोहल के लिए लिखा, प्रीवियस स्लाइड में इथेनॉल के लिए डिहाइड्रेशन देखा, तो देखा H2SO4 के साथ हो रहा है। यहाँ पे वो डिहाइड्रेशन हमारा अचीव कर लेते हैं हम 85% H3PO4 के साथ, यानी थोड़ा माइल्डर कंडीशन चाहिए, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये एल्कीन दे देगा। इसी तरीके से जब हम टर्शरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल टर्शरी अल्कोहल का, यहाँ पे हमें केवल चाहिए 20% H3PO4, और टेम्परेचर में भी चेंज हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी लोअर चाहिए, यानी इस टर्शरी अल्कोहल के लिए डिहाइड्रेट होना सेकेंडरी या प्राइमरी दोनों से ही ज्यादा इजी है, और माइल्डर कंडीशन में ये हम अचीव कर लेते हैं डिहाइड्रेशन। सो दिस इज हाउ डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड देयर ईज ऑफ डिहाइड्रेशन
दैट इज दिस इज द ऑर्डर दे शो। अब बात आती है, अभी बात हुई थी कि क्यों टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी का जो ऑर्डर हमने पढ़ा वो ऑर्डर वैसा क्यों है, क्यों टर्शरी सबसे आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। यहाँ पे उसकी मैकेनिज्म में हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो मैकेनिज्म हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन, कि इथेनॉल जब डिहाइड्रेट होता है टू गिव इथीन, तो व्हाट मैकेनिज्म इज दैट फॉलोइंग। पहला स्टेप है रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटॉन कहाँ से आया? प्रोटोनिक एसिड से, जो हमने लिया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 जो इन रिएक्शन में हमने यूज किए प्रोटोनिक एसिड। ये प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का अटैक, प्रोटॉन कोऑर्डिनेट करेगा ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप के साथ, जिसका रिजल्ट होगा ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन। ये हमने प्रोटोनेटेड अल्कोहल टर्म पहले भी पढ़ा है, हाइड्रेशन ऑफ इथीन पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में, उसमें हमने किया था। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बाय H attack of H positive on lone pair of oxygen resulting in its coordination with oxygen। तो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा ये, और ये इस तरीके से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, दिस विल लूज वाटर मॉलिक्यूल H2O बीइंग अ गुड लीविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा और यहाँ से हमारे पास एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड वी विल गेट दिस कार्बोकेटायन। तो सेकेंड स्टेप जो हमारे पास है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। एंड फाइनली जो हमने H पॉजिटिव प्रोटोनिक एसिड यूज किए थे, देवर एक्टिंग एज कैटलिस्ट। तो ये जो कार्बोकेटायन बना है वो H पॉजिटिव का लॉस करेगा, इट विल लूज H पॉजिटिव, यानी वो रीजनरेट हो जाएगा H पॉजिटिव, लीडिंग टू, क्योंकि H पॉजिटिव गया है अपने इलेक्ट्रॉन सिस्टम में छोड़ के जाएगा, और ये एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कार्बन के बीच में, एंड एल्कीन वी विल गेट। सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। पहला प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ इथीन या एल्कीन बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब बात आती है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर, वो क्यों, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी क्यों। तो अगर हम सेकेंड स्टेप देखें रिएक्शन का, यहाँ लिखा है स्लो स्टेप। किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वो उस रिएक्शन का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, यानी वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन जब, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा वो पूरी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। यू कैन नॉट कंसीडर रिएक्शन एज कंप्लीट, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा रिएक्शन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो इस स्लो स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यानी जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिस अल्कोहल से मिलने वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके लिए ये स्लो स्टेप रिलेटिवली अदर अल्कोहल एज कंपेयर टू अदर अल्कोहल्स फास्टर होगा। जैसे अगर हम बोले कि कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो रिजल्ट क्या होगा, टर्शरी कार्बोकेटायन किससे मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल से। तो टर्शरी अल्कोहल के लिए इस स्टेप को क्रॉस करके अपना स्टेबल कार्बोकेटायन देना ज्यादा इजी होगा, फास्टर होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल। तो सिंस stability of carbocation, intermediate carbocation which are forming is this in this reaction follows the order tertiary, secondary, primary. So reactivity of alcohols in the reaction also follows the same order, that is tertiary, secondary, primary, and that is why जो tertiary alcohols होते हैं वो सबसे आसानी से dehydrate हो जाते हैं। So this was mechanism of dehydration of ethanol to ethene. नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन में हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्मेशन होता है विद द क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड एंड सी एच बॉन्ड, सीओ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एंड सेकेंडली नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ये डिसाइड करेगा। पहला नेचर ऑफ अल्कोहल एंड सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा। जैसे अगर हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल जब पहले ऑक्सीडाइज होगा तो देगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो इट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एक चीज है यहाँ पे कि इन तीनों में प्राइमरी अल्कोहल से मिलने वाला एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए ये रिएक्शन को आपको एल्डिहाइड स्टेज पे रोकना ये एक डिफिकल्ट है। ये अगर आप ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो दिस रिएक्शन
गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होंगे। प्राइमरी अल्कोहल से मिलने वाला एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड विल हैव सेम, ऑल थ्री विल हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो यू विल गेट कीटोन एज अ प्रोडक्ट। अब कीटोन में तो उतने ही कार्बन हैं जितने आपके सेकेंडरी अल्कोहल में थे। कीटोन को इन जनरल इन ऑर्डिनरी कंडीशन दीज आर कंसिडर्ड एज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। कीटोन्स को ये माना जाता है कि बहुत जल्दी से ऑक्सीडेशन नहीं देते हैं, रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑक्सीडाइज्ड। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इनके पास कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं। जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव करने पड़ेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तभी उसमें ऑक्सीजन इंसर्ट हो सकती है और तभी वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन दे सकते हैं। जैसे अगर हम कीटोन को ऑक्सीडाइज करें भी एलिवेटेड टेम्परेचर पे और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, तो व्हाट हैपेंस, it will give you a mixture of carboxylic acid। कीटोन जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो हमें देते हैं मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट फॉर जनरल consideration, what we consider that ketones generally they do not get oxidized easily, तो they are considered, क्योंकि क्वेश्चन भी इस बार तरीके से है कि प्रोडक्ट दिस compound is resistant to oxidation, तो this was a question related to कीटोन। तो कीटोन जनरली बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं देंगे, क्योंकि रिएक्शन जो है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होना होता है, और इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर आपको मिला हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली अगर हम टर्शरी अल्कोहल्स की बात करें, तो टर्शरी अल्कोहल को भी जनरली हम ये मानते हैं कि दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। नॉर्मली वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर पे आप उनका ऑक्सीडेशन कराओगे, तो टर्शरी अल्कोहल उसी वे में जैसे सेकेंडरी ने बिहेव किया था। टर्शरी को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, पहले it will get converted, it may get converted to ketone, and this on further oxidation it will give mixture of carboxylic acids। so उसी वे में ये आपको प्रोडक्ट देगा, लेकिन टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन इज वेरी डिफिकल्ट। अब एक बात हमने प्रीवियस स्लाइड में की कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं अंडर ऑर्डिनरी विद ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो उतने स्ट्रॉन्ग है, तो एल्डिहाइड स्टेज पे उस ऑक्सीडेशन को रुकना रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सीधे कहाँ जाएगी? आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट यू विल गेट। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड स्टेज तक करें और एल्डिहाइड आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज ना हो, तो वी रिक्वायर्ड सम माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें थोड़े से वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और इसके लिए एक जो कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज पीसीसी, pyridinium chlorochromate। दिस इज pyridinium chlorochromate। this oxidizing agent is a weak weaker as compared to पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड जो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, या ऑर्डिनरी के MnO4 यूज करते हैं, या HNO3 यूज करते हैं, उनसे वीकर है। इसका पर्पस या इसका एडवांटेज ये है कि जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो वो एल्डिहाइड स्टेज तक जाएगी रिएक्शन, एल्डिहाइड आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। So this question was asked in exams also, what is PCC and what is its use? So what is PCC? PCC is pyridinium chlorochromate. What is its use? It is used to oxidize primary alcohol to aldehyde stage and prevent further oxidation. It prevents further oxidation of aldehydes to carboxylic acid. So this is why PCC is used. Next is action of copper at 573 Kelvin. Different alcohols, primary, secondary and tertiary, when their vapors are passed over copper heated at 573 Kelvin, so जो product मिलेगा that will be different. जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये देंगे आपको डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन व्हेन देयर वेपर्स आर पास्ड ओवर कॉपर हीटेड at 573 Kelvin। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन, जबकि जो टर्शरी अल्कोहल होगा दैट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन।
What is dehydrogenation? Loss of hydrogen is dehydrogenation एंड लॉस ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेशन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है H2 मॉलिक्यूल एंड दिस इज डिहाइड्रोजिनेशन. जैसे हम ये देख रहे हैं एक प्राइमरी अल्कोहल है, जब ये डिहाइड्रोजिनेट होगा तो इट विल गिव यू एल्डिहाइड. सेकेंडरी अल्कोहल जब डिहाइड्रोजिनेट होगा इट विल गिव यू कीटोन. और जब टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा, इस केस में वाटर का लॉस है, ये डिहाइड्रेट होगा, इट विल गिव यू एल्कीन. So this is how this reaction with copper at 573 Kelvin for different classes of alcohols, primary, secondary, and tertiary, takes place. So they show different behavior, giving different products when their vapors are passed over copper at 573 Kelvin. So this was about alcohols. Now next is phenols. Introduction to phenols in the last class itself we started. हमने last class में start किया था, phenol को introduce किया था, alcohols के साथ ही उनका nomenclature किया था. हमने बताया था कि phenol अपने आप में phenols is a class of compound और उसका एक compound है phenol, this C6H5OH. phenols हम कब बोलते हैं? जब OH ग्रुप जो है वो aromatic सिस्टम के कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है. जैसे ये बेंजीन के 6 कार्बन है, इनमें से किसी एक के साथ डायरेक्टली अगर OH ग्रुप बॉन्डेड है तो कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल. सो ये हमने किया था, नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी किया था. जैसे एक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है तो फिनॉल के रेस्पेक्ट में OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन 2 है, तो दिस इज 2 मिथाइल फिनॉल. और कॉमन में भी इसका नाम बताया था आपको, ऑर्थो पोजीशन है ये ऑर्थो क्रिसॉल. ये हमने लास्ट क्लास में कर चुके हैं. दिस इज 3 मिथाइल फिनॉल एंड दिस इज 4 मिथाइल फिनॉल. प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की बात करें तो प्रिपरेशन में पहला मेथड है फ्लोम क्लोरोबेंजीन. एंड सिंस दिस इज एन हेलोएरीन तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में भी कि क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल इज अ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ऑल्सो. हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल? सो क्लोरोबेंजीन को, ये कॉमर्शियल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का. क्लोरोबेंजीन को जब फ्यूज किया जाता है विद NaOH at about 623 Kelvin temperature and 300 atm pressure, you will get this compound which is called sodium phenoxide. हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा और सोडियम फिनॉक्साइड को विद डाइल्यूट HCl जब हम एसिडिफाई करेंगे we will get phenol. So this method is commercial method of preparation of phenol and this is known as Dawes process. इसको Dawes process का नाम देते हैं. एग्जाम में बताया अभी मैंने, एक important conversion है ये. How will you convert chlorobenzene to phenol? So this is how you can convert chlorobenzene to phenol. Next method of preparation of phenol is from benzene sulfonic acid. So benzene sulfonic acid, this compound is benzene sulfonic acid. बेंजीन सल्फोनिक, दिस ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप. तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाया जाएगा? बेंजीन को जब हम उसका सल्फोनेशन करेंगे, बेंजीन का सल्फोनेशन करेंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड SO3 की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. जब इसको ट्रीट कराया जाता है एल्कली के साथ, ये एसिड है, एल्कली के साथ आप ट्रीट कराओगे, यू विल गेट अ सॉल्ट दैट इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. तो ये हमें मिलता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को जब फ्यूज करेंगे आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जैसे हमें प्रीवियस रिएक्शन में हमने देखा था, यहाँ पे हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड. और सोडियम फिनॉक्साइड को उसी तरीके से जब ट्रीट किया जाता है या एसिडिफाई किया जाता है, ट्रीट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमें मिलेगा फिनॉल. सो यहाँ से जो ये रिएक्शन है, ये प्रीवियस रिएक्शन का ही सिमिलर है कि सोडियम फिनॉक्साइड को जब आप उसका एसिडिफिकेशन करते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल का, यू विल गेट फिनॉल. So this is the way that you can convert benzene sulfonic acid to phenol. डायazonium सॉल्ट से, डायazonium सॉल्ट से फिनॉल का बनना. जब एक एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, ये लास्ट चैप्टर में ये रिएक्शन भी थी, एक एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को रिएक्ट कराया जाता है विद NaNO2 एंड HCl एट अबाउट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट इज 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, डायazonium सॉल्ट इज फॉर्म्ड. ये डायazonium सॉल्ट हमारे पास है बेंजीन डायazonium क्लोराइड. तो ये जो प्रोसेस होता है ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन into a diazonium salt is called diazotization. अब ये जो डायazonium क्लोराइड बना है, इससे फिनॉल कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो बेंजीन डायazonium क्लोराइड को जब आप वार्म करोगे वाटर के साथ, यू विल गेट फिनॉल एंड नाइट्रोजन गैसेस इवॉल्व इन द रिएक्शन.
सो एक सिंपल वे में हमें दिख रहा है कि अगर हम सीधे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ वार्म कर रहे हैं, हमें फिनॉल मिल रहा है, नाइट्रोजन गैस इज getting involved in the reaction. So this is how we can convert, how this is how we can get phenol from benzene diazonium chloride or diazonium salt. This is again from cumene. This is very important method for the preparation of phenol. This is commercial method of the preparation of phenol. और cumene होता क्या है? Cumene होता है isopropyl benzene. This compound is known as cumene isopropyl benzene. इसको जब हम oxidize करते हैं in the presence of air, we will get this which is called cumene hydroperoxide. We get this compound cumene hydroperoxide, जिसको अगर हम एसिडिफाई करें डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं, we will get phenol, and with phenol one more product we are getting and that is acetone. और ये इस रिएक्शन का एडवांटेज भी है। ये जो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है इसके साथ एसीटोन, दैट इज ऑल्सो अ कॉमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो और वो बन भी एक लार्ज क्वांटिटीज में हमें मिल रहा है, तो ये इस रिएक्शन का एक एडवांटेज भी है कि फिनॉल के साथ हमें एक और प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज एसीटोन, और उसकी भी कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है। सो अगर पूछा जाए कि फिनॉल को क्यूमीन से प्रिपेयर करने में हमारे पास एडवांटेज क्या है, तो उसका एडवांटेज यही है कि द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन दैट इज एसीटोन विच इज कॉमर्शियली एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, वो भी हमें लार्ज क्वांटिटीज में इस मेथड में मिलता है, फिनॉल तो मिलता ही है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। बॉन्ड लेंथ एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल की बात करते हैं। तो जो बॉन्ड लेंथ अगर हम देख रहे हैं जनरल कंपैरिजन, यहाँ देखिए ये जो CO बॉन्ड लेंथ है फिनॉल के केस में, और ये जो CO बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे एक मिथेनॉल का एग्जांपल है, ये CO बॉन्ड लेंथ स्लाइटली लेस है देन दिस बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कोहल CO बॉन्ड लेंथ से। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम देखते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होने की वजह से उसमें डिलोकलाइज हो जाएगा, रेजोनेट करेगा, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो CO बॉन्ड है फिनॉल वाला, इसके साथ जो ऑक्सीजन का कॉन्जुगेशन होता है उसका रिजल्ट ये होगा कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और इसमें अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है और ये एक प्योरली सिंगल बॉन्ड है, तो रिजल्ट क्या होगा कि डबल बॉन्ड जो होता है दैट इज हैविंग स्लाइटली लेस लेंथ देन दिस सिंगल बॉन्ड। तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इस वाले बॉन्ड लेंथ से कम होती है, एंड देयरफॉर CO बॉन्ड इन फिनॉल इज लेस, स्लाइटली लेस longer than CO बॉन्ड इन अल्कोहल्स। अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, फिनॉल का जो डाइपोल मोमेंट है वो अल्कोहल्स हमने पढ़ा था, अल्कोहल्स के केस में COH, ये दोनों बॉन्ड पोलर होते हैं, OH बॉन्ड भी पोलर है, CO बॉन्ड भी पोलर है, और दोनों का डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो जिसका रिजल्ट ये होता है कि अल्कोहल्स हैव हाई डाइपोल मोमेंट। लेकिन जब हम ये चीज फिनॉल के लिए देखते हैं तो फिनॉल का डाइपोल मोमेंट कम क्यों है? क्योंकि बेंजीन रिंग यहाँ पे एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है दिस गेट डीलोकलाइज्ड इन द रिंग। तो डायरेक्शन हम देख रहे हैं ऑक्सीजन पे इवन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जब ये इसका डीलोकलाइजेशन हुआ है। तो ये जो रिंग है यहाँ पे, ये रिंग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रही है विद OH ग्रुप, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रिंग की तरफ विड्रॉ हो रहे हैं, तो जो CO बॉन्ड है यहाँ पे, फिनॉल वाला जो CO बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी कम हो जाती है। अब अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से, तो अगर इस बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो गई तो ओवरऑल हमें ये पता चल रहा है कि जो फिनॉल है उसका डाइपोल मोमेंट कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। तो दिस वाज अबाउट बॉन्ड लेंथ एंड डाइपोल मोमेंट इन फिनॉल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वही दो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं मेनली, एक बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा सॉलेबिलिटी। सो बॉइलिंग पॉइंट के केस में देखते हैं कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इनको नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स लाइक टोलीन, बेंजीन, इनसे अगर आप कंपेयर करोगे ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले नॉन पोलर कंपाउंड्स के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज्यादा होता है। रीजन वही है जो हमने अल्कोहल्स के केस में पढ़ा था कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसका रिजल्ट होगा मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट होने लगेंगे तो उस एसोसिएशन को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट मींस इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट के हाई होने का रीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
फिर हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी की। जब हमने अल्कोहल्स के डिस्कस किया था सॉलिबिलिटी इन वाटर, तो हमने डिस्कस किया था कि जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं दे आर हाईली सॉलेबल इन वाटर, और जैसे जैसे आर ग्रुप का साइज अल्कोहल का बड़ा होने लगता है, यानी ये हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होने लगता है, तो सॉलिबिलिटी वाटर के साथ कम होने लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है ये वाला ग्रुप। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हम फिनॉल के लिए देखें, तो जो इवन सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन का, वो फिनॉल खुद है। तो रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे हम स्टार्ट ही कर रहे हैं एक लार्ज नॉन पोलर पार्ट यानी हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साथ। तो ये जो नॉन पोलर एराइल ग्रुप है दैट इज ऑलरेडी क्वाइट लार्ज इन साइज, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये इस OH बॉन्ड के पोलर कैरेक्टर को ऑलमोस्ट मास्क कर देता है, यानी उसको डोमिनेट करता है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि इस नॉन पोलर पार्ट का साइज बड़ा होने की वजह से OH उतना इजीली वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, ये उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, जिसका रिजल्ट ये होता है फिनॉल्स आर ओनली स्पेरिंगली सॉलेबल। स्पेरिंगली वर्ड का मतलब होता है वेरी लेस सॉलेबल, वी आर नॉट सेइंग इनसॉलेबल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन वो बहुत कम एक्सटेंट है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये बहुत प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है जो एराइल ग्रुप है, इसलिए इनकी सॉलेबिलिटी बहुत कम होती है, जबकि लोअर अल्कोहल जो होते हैं दे आर हाईली सॉलेबल। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में पहला उसका एसिडिक कैरेक्टर। फिनॉल्स भी अल्कोहल्स की तरह एसिडिक कंपाउंड्स हैं। फिनॉल जैसे रिएक्ट करेगा विद एल्कली, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड प्लस बेस इज गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, ये रिएक्शन हो रही है। फिनॉल को अगर हम देखें तो फिनॉल का जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट इज ग्रेटर देन अल्कोहल्स। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। रीजन क्या है एसिडिक कैरेक्टर का? रीजन वही है कि जो OH बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। अब OH बॉन्ड पोलर होता है, और फिनॉल के केस में ये जो OH ग्रुप है ये sp2 कार्बन से बॉन्डेड है। और sp2 कार्बन, जबकि अल्कोहल्स जब हमने देखे थे, जैसे हम सपोज इथेनॉल की भी बात करें, तो अल्कोहल जब हमने देखे थे तो ये जो कार्बन होता है दिस इज sp3, और जो sp2 कार्बन होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो इफ इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से ऑक्सीजन की तरफ नहीं जाने देगा जितनी आसानी से ये जाने देगा। तो रिजल्ट क्या होगा, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली विड्रॉ नहीं कर पा रहा है ये, तो किधर से विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन की साइड से। तो इसका H पॉजिटिव जल्दी रिलीज होगा एज कंपेयर टू दिस H पॉजिटिव। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के ऑलरेडी होते हैं अल्काइल ग्रुप जो अल्कोहल में थे। तो इसका sp2 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना भी इसके एसिडिक कैरेक्टर को फेवर करता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल की बात करें, तो जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। कॉन्जुगेशन में होने की वजह से जब ये रिंग में डीलोकलाइज होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं या डबल बॉन्ड्स हैं रिंग में, वो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं, तो चाहे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करे रिंग में या नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करे, वो रेजोनेट करेगा ऑल्टरनेट पोजीशंस पे ही। तो ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पे चार्ज मूव कर रहा है ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, हम देख रहे हैं नेगेटिव। और इसमें हम एक चीज और देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी क्या कोशिश होगी कि ये स्ट्रांगली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, ये जो OH बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को और स्ट्रांगली अपनी तरफ विड्रॉ करे और H पॉजिटिव रिलीज हो जाए, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो, खत्म हो। सो ये इस वजह से, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया, और इस बॉन्ड की पोलैरिटी इसकी वजह से ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करके, और दिस विल फैसिलिटेट रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल जो हमने 11th में भी पढ़े हैं। इसके बाद अगर हम दोनों को कंपेयर करें, कि अभी एक हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि फिनॉल जो होते हैं वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब हम देखें पहले दोनों का आयनाइजेशन। जब अल्कोहल आयनाइज हुआ तो उसने दिया हमें एल्कोक्साइड आयन विद द लॉस ऑफ H पॉजिटिव। जब फिनॉल आयनाइज हुआ उसने दिया हमें फिनॉक्साइड आयन विद द लॉस ऑफ H पॉजिटिव। अब बात आती है, जब हम एल्कोक्साइड आयन की बात कर रहे हैं तो एल्कोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड है। कभी भी जो चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, अगर एक पोजीशन पे रहता है, लोकलाइज्ड होता है, तो वो उस स्पीशीज को अनस्टेबल करेगा। लेकिन अगर उस चार्ज के पास डिस्पर्स होने के ऑप्शन है, वो डीलोकलाइज हो सकता है, इट हैज गॉट मोर देन वन पोजीशन टू स्प्रेड इटसेल्फ, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
लेकिन एल्कोक्साइड आयन में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो चार्ज है ये एक ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में ये जो चार्ज है ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, इसका चार्ज रिंग में स्प्रेड हो सकता है, तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। अब जब फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो फिनॉल की फिनॉक्साइड आयन में जाने की टेंडेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल की एल्कोक्साइड आयन में जाने की टेंडेंसी और H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी। तो जो आसानी से आयनाइज हो रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, दैट मींस दैट इज मोर एसिडिक। सो फिनॉल इज मोर एसिडिक ड्यू टू resonance stabilization of phenoxide ion which is not there in alkoxide ion। तो ये जब हमें कंपैरिजन के लिए आएगा कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक कम एसिडिक क्यों है एज कंपेयर टू फिनॉल, तो हम यही लिखेंगे बिकॉज अल्कोहल अल्कोहल से बनने वाले एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन नहीं होता, जबकि फिनॉक्साइड आयन जो होता है दैट इज रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड। अब एक क्वेश्चन आती है, बात अगर हम करें तो हमने देखा पीछे ये दोनों स्ट्रक्चर अपने प्रीवियस स्लाइड में देखे हैं, ये वाले सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और ये भी। तो क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि जब फिनॉल भी रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड है, फिनॉक्साइड आयन भी रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड है, तो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में गया ही क्यों? इसमें ये भी हम देख रहे हैं 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, नीचे फिनॉक्साइड आयन के भी नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स सेम है। सो व्हाई इज इट इवन आयनाइजिंग टू गिव फिनॉक्साइड आयन, क्यों जा ही रहा है वो फिनॉक्साइड में? तो इसका आंसर आप देखो, जब हम फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों चार्जेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस का मतलब ये एक अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, यानी नेगेटिव चार्ज उतना फ्रीली डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, चार्ज सेपरेशन के लिए एनर्जी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज का एक अट्रैक्शन नेगेटिव के ऊपर काम करेगा और इसका फ्री डीलोकलाइजेशन उतना पॉसिबल नहीं होगा इन केस ऑफ फिनॉल। लेकिन अगर हम फिनॉक्साइड आयन में देख रहे हैं तो देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज, ओनली नेगेटिव चार्ज इज देयर व्हिच इज मूविंग इन द रिंग, जो आराम से डीलोकलाइज होगा, जिसका रिजल्ट होगा कि नेगेटिव चार्ज का ज्यादा इफेक्टिव, अगर हम पूछें कि डीलोकलाइजेशन किस में है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इफेक्टिवली डीलोकलाइज होगा फिनॉक्साइड आयन के केस में देन फिनॉल। सो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड दोनों में से किसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल बाय रेजोनेंस देन फिनॉल इटसेल्फ। फिनॉक्साइड आयन की जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है वो फिनॉल से ज्यादा होगी, और यही रीजन है कि फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में जाता है आसानी से और H पॉजिटिव देता है और उसका एसिडिक कैरेक्टर हाई होता है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट की। जब एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो वो फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को कैसे इंपैक्ट करेगा? सब्स्टिट्यूएंट यानी या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट की हम बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं। अब वो उसी तरीके से जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी को कम करेगा वो एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा, जो उसकी पोलैरिटी को बढ़ाएगा वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। या इसी चीज को हम फिनॉक्साइड आयन के रेस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं, दोनों बातें देखते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा रिंग से, रिंग की कोशिश होगी कि आसानी से ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में डीलोकलाइज हो जाएं, तो ऑक्सीजन और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा OH बॉन्ड से, जिसका रिजल्ट होगा H पॉजिटिव रिलीज्ड इजीली। तो H पॉजिटिव आसानी से रिलीज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से या OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा और H पॉजिटिव का रिलीज होगा। लेकिन अगर यही इम्पैक्ट हम देखें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स में, तो क्या है, रिंग में यहां से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए थे, लेकिन ये ऐसे ग्रुप जुड़ गए जो रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं रिंग को, तो इनका डिलोकलाइजेशन जो है वो इम्पैक्ट होगा। जो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था वो उतना इफेक्टिवली अब रिंग में डिलोकलाइज नहीं होगा, क्योंकि रिंग में दूसरे ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो रिजल्ट ये होगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जा रहे हैं, यानी O पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतनी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं हो रही है, तो OH बॉन्ड के जितने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होने चाहिए थे स्ट्रांगली ऑक्सीजन की तरफ, वो उन्हें विड्रॉ नहीं करेगा। H पॉजिटिव विल बी रिलीज्ड विद डिफिकल्टी, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। एक तरीके से और समझ सकते हैं इसी बात को कि अगर हम बोले कि फिनॉक्साइड आयन, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को रिंग में डीलोकलाइज होने में हेल्प करेगा।
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज को रिंग में डीलोकलाइज होने में हेल्प करेगा। और अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज अगर वो आराम से डीलोकलाइज हो रहा है तो उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे ऐसे ग्रुप्स बाय डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसका रिजल्ट होगा ये फिनॉल के आयनाइजेशन में हेल्प करेंगे और उसे ज्यादा एसिडिक बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये नेगेटिव चार्ज को, ये टर्म आपको याद रखना है, डिस्पर्जल और इंटेंसिफाई करता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं तो ये नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेंगे फिनॉक्साइड आयन के, और चार्ज कभी भी अगर इंटेंसिफाई हो रहा है तो वो उस स्पीशीज को डीस्टेबिलाईज करेगा। तो अगर फिनॉक्साइड आयन डीस्टेबिलाईज हो रहा है तो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में जाने की कोशिश नहीं करेगा या उसका आयनाइजेशन इम्पैक्ट होगा, आयनाइजेशन कम हो जाएगा एंड रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड एसिडिक strength. So this was about acidic strength of phenols. आज की क्लास हमने स्टार्ट की थी एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स के साथ और आज की क्लास हम एंड करेंगे एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स के साथ। तो जस्ट लाइक अल्कोहल्स, जब फिनॉल्स, ये हम यहाँ पे OH ग्रुप वही अल्कोहल के OH की तरह बिहेव करता है, फिनॉल को आप रिएक्ट करवाते हो विद एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड तो उसी तरीके से इसका H और एसिड डेरिवेटिव का OH की जगह जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3COO, तो HCl जाएगा बाय प्रोडक्ट, CH3CO जाएगा बाय प्रोडक्ट और यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एसिड पार्ट के नाम को लिखते हैं OH के साथ। तो ये हो गया आपका क्या, 2 कार्बन के साथ इथेनोएट। पहली स्लाइड में हमने बात की है इस बारे में, नेमिंग कैसे करते हैं, इथेनोएट। और ये ग्रुप आया एल्काइल की तरह लिखा जाएगा, यहाँ पे ये एराइल है तो एराइल ग्रुप कौन सा है, ये फिनाइल। तो एल्काइल एल्केनोएट, यहाँ पे क्या हो गया, फिनाइल इथेनोएट। ये एस्टर बनेगा जो फिनॉल से बना जब हम उसका एसाइलेशन करेंगे। एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन। तो ये एसाइलेशन रिएक्शन या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल होगी, हमें मिल रहा है फिनाइल इथेनोएट और कॉमन में फिनाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं। सो एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एक और रिएक्शन डिस्कस करते हैं एंड दैट इज ऑल फॉर द डे। ये लास्ट रिएक्शन होगी। सैलिसिलिक एसिड इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये कंपाउंड आगे भी हमें इसी चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जब हम इसको एसिड इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ इसका एसाइलेशन करवा रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, वही एस्टरिफिकेशन किसका होगा, एसिड ग्रुप के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, एस्टरिफिकेशन होता है अल्कोहलिक यानी OH ग्रुप के साथ और एसिड के साथ, तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एस्टरिफिकेशन। और ये कंपाउंड जो है दिस इज कॉमनली नोन एज एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और अनदर नेम फॉर दिस इज 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसे 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। सो एस्पिरिन ये कंपाउंड है, एक ड्रग है, एक मेडिसिन है, जिस विच इज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक वो होते हैं जो पेन रिलीवर्स होते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो होते हैं जो फीवर में यूज किए जाते हैं बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो ये जो एस्पिरिन है ये एनाल्जेसिक भी है, पेन रिलीवर, और फीवर को कम करने के लिए यूज की जाती है, तो एंटीपायरेटिक भी है। So this is all for today's class. Link to the PDF you will find in the description box. Have a nice day. Stay safe. Thank you.